اللہ، مجھے تقدیر کے کس موڑ پر لا کھڑا کیا؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو کلکتے سے پشاور تک بے چینی کی ایک ہوا چل رہی ہے، آزادی کی روٹی ایک دل سے نکل کر دوسرے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسری طرف میرے شہزادے ان حالات سے بے خبر چوگان کھیل رہے ہیں، جس میں گیم کی جگہ وطن کی تقدیر استعمال کی جا رہی ہے۔ اللہ، انتظار کرتے کرتے تو ہماری آنکھیں پتھرا گئیں۔ تو مرزا نوشا کا وہ مطلب گنگنا لیا ہوتا، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ۔ آج کل تو میں استاد ذوق کا ایک مطلع گنگناتی رہتی ہوں، بلبل ہوں صحن باغ سے دور اور شکستہ پر، پروانہ ہوں چراغ سے دور اور شکستہ پر۔ تم تو شمع بنی بیٹھی رہو ہمارے دل میں۔ آج تو صاحب عالم بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بات ہی ایسی ہے، یہ فرنگی بھی بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، اچھی بھلی چوگان کو پولو کہتے ہیں۔ میٹکاف صاحب نے ہمیں چوگان کی دعوت دی تو ہم چلے بھی گئے اور بالا بھی مارا ہے۔ اس پر وہ خوش ہو کر بولے، صاحب عالم ہم آپ کو ایک خوشخبری کی بات بتاتا ہے۔ ہم نے بھی نہیں ٹوکا میاں کہ جب خوشخبری کہی چکے ہیں تو پھر بات کہنے کی کیا ضرورت؟ پر وہ خوشخبری ہے کیا؟ خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے لاٹ صاحب کو لکھ دیا کہ ہمیں ہی ولی عہد تسلیم کیا۔ میں تو کل سویرے ہی نظام الدین جا کر چادر چڑھاؤں گی، پر کہیں ملکہ عالیہ کوئی مشکلہ نہ چھوڑ دیں۔ اب ان کی کوئی چال نہیں چل سکتی، بات ان کے اختیار سے باہر نکل چکی ہے۔ کنیز ماری جائے، کیا بٹیا صاحب نے بلوایا ہے؟ تخلیہ لاٹ صاحب نے ذل سبحانی کی بات رد کر دی، اور اب مٹکاف وہ بھی مرزا فخرو کی سفارش کر رہا ہے۔ ارے کیڑے پڑے لاٹ صاحب کی زبان میں اور آگ لگے منہ مٹکاف کی مٹکافی میں۔ کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا محبوب بوا، عالم پناہ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی ہے ابھی نہیں، تو کیا ہمیں فخرو کی مہربانی پر جینے کی ذلت گوارا کرنی پڑے گی؟ ارے ذلت ہو بٹیا صاحب کے دشمنوں کی؟ اگر میں عورت نہ ہوتی محبوب بوا تو دیکھ لیتی ان حالات کو، مگر میں پردہ نشین تمہارے سوا کس سے کہوں؟ حکم ہو تو جان نچھاور کر دے لونڈی۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے محبوبہ، مجھے جان چاہیے مرزا فخرو کی۔ بندی کے دھیان میں ایک ترکیب آتی ہے بٹیا صاحب، لالا نوبت رائے کی گلی میں گنگو تیلی سفلی عمل میں بہت مشہور ہے، جادو کی ہنڈیاں بیچتا ہے، پتلی بناتا ہے۔ محبوب بوا تو پھر اپنے بابا سرکار کے رازدار حکیم امام الدین کو بلا لیجیے نا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ یہ لیجیے بٹیا صاحب، بندی چلی، ذل سبحانی کے دشمنوں کی طبیعت بھی خراب ہے اور کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ حکیم امام الدین کو کیوں بلوایا گیا ہے۔ شہزادی فخرو کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ولی عہدی کی بات اب ملکہ عالیہ کے اختیار سے نکل چکی ہے، لیکن ملکہ عالیہ پھر ملکہ عالیہ ہیں
आसानी से शिकस्त नहीं मानेंगी, क्योंकि वो आलम पनाह को दिल की बिसात पर एक मोहरे की तरह आगे पीछे चलाना खूब जानती हैं। मुख्तसर ये कि वली अहदी की बाजी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नतीजा यह हुआ कि जब आलम पनाह के हिस्से में वतन की उलझनों के साथ साथ वली अहदी की खींचातानी का खामोश तमाशाई बने रहने की उलझन भी आ गई, तो वो बीमार पड़ गए। तखलिया, बैठो। हमने तुम्हें अपनी वसीयत सुनाने के लिए बुलाया है। अल्लाह हमारे सरों पे ज़िल्ले सुभानी का साया कायम रखे। जो ये तुम्हारी दिली ख्वाहिश होती है, तो तुम हमारी मर्जी से वाकिफ होने के बावजूद फिरंगियों को अपनी वली अहदी की दरखास्त न भेजते। ज़िल्ले सुभानी, न जाने क्यों मैं लोगों के बहकावे में आ गया। खैर, बहरहाल तुम जवां वक्त के बड़े भाई हो। हमसे वादा करो कि हमारे बाद जवां वक्त और मलिका आलिया जीनत बेगम का पूरा ख्याल रखोगे। आइए बेगम। अब कैसी तबीयत है ज़िल्ले सुभानी की? तबीयत तो वैसी है, आप बैठिए। हम फखरू से कह रहे थे कि हमारे बाद अपना हाथ जवां वक्त के सर पर रखियो। ये अपने हाथों को अपने सर पे मुगलों का ताज रखने के लिए खाली रखना चाहते हैं ज़िल्ले सुभानी। अल्लाह जानता है ज़िल्ले सुभानी के खादिम ने आज तक मलके आलिया या जवां बख्त का बुरा नहीं चाहा। दो बड़े भाइयों की मौत में अगर मुझे ज़िल्ले सुभानी का सबसे बड़ा बेटा बना दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? इन बातों के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है फखरू। हमने आपके इलाज के लिए बाबा सरकार के हकीम इमामुद्दीन को बुलवाया है ज़िल्ले सुभानी। आप इजाजत दें तो वो आपकी नब्ज देख लें। हमारी नब्ज को छोड़िए बेगम। यहाँ अबू जफर बहादुर शाह अपने वतन से मुंह छिपाए पड़ा है। हमारी कब्र पर ये लिखवा दीजिएगा। ऐसा ना कहें ज़िल्ले सुभानी। आपको अपने हिंदुस्तान, अपनी जीनत महल और अपने जवां बख्त के लिए जिंदा रहना है। इसे आप जीना कहती हैं? बखुदा झुके झुके हमारी गर्दन दुखने लगी है और हम देख रहे हैं कि शहजादों को वतन से ज्यादा ताज के लिए लड़ने का शौक है। बुला लीजिए हकीम को। आइए हकीम साहब। कोई परेशानी की बात नहीं है ज़िल्ले सुभानी। एक फक्की बना देता हूं ज़िल्ले सुभानी। बस सुबह शाम फांक लिया करें, अल्लाह करम करेगा और 4 रोज में शफा। भाई इमामुद्दीन, तुमने तो वाकई जादू की पुड़िया बनाई है। 3 ही दिन में आधे अच्छे तो हो गए। पूरी सेहतियाबी में पूरे 3 दिन और नहीं लगेंगे ज़िल्ले सुभानी। हाजिर होता हूं। जान की अमान ज़िल्ले सुभानी। क्या है? हकीम एहसानुल्लाह खां बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। इतनी रात क्या ज़िल्ले सुभानी? खैर, बुलाओ। ज़िल्ले सुभानी, ऐसी कौन सी बुरी खबर है एहसानुल्लाह खान जो इतनी रात गए सुनाने चले आए? डलहौजी साहब ने कलकत्ता से उन्होंने लिखा है कि कंपनी मिर्जा फखरू के सिवा किसी और शहजादे को वलीयत तस्लीम करने पर तैयार नहीं। ज़िल्ले सुभानी, मुबारक हो फखरू, लाल किले का वलीयत होना मुबारक हो। जिस दिन के बाद तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर है परी जमाल, लगता है वो दिन बहुत करीब आ चुका है। क्या ये सिर्फ मेरा ख्वाब है जाने वाला? नहीं,
हमारा। जीनत महल बेगम कॉर्निश करके तुम्हारी खिदमत में नजर पेश करेंगे और फिर उल्टे कदमों चलती हुई वापस अपनी जगह जाके खड़ी हो जाएंगी। इस कद्दे आदम मायने में देखो परी जमाल, मुस्तकबिल की मलके आलिया खड़ी हैं। आलम पना आज हमें क्या नजर करेंगे? जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। हम शेरों से बहलने वाले नहीं है सुल्तान आलम। चंद दिन और इंतजार कर लीजिए मलके आलिया, उसके बाद हम ये जो जन्नत है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। हमने वो तोहफा कबूल फरमाया जो जलालुद्दीन का वली अहद सलीम अनारकली को ना दे पाया था, लेकिन दिल्ली हुनूस दूरस्त जाने आलम, दूरस्त। परी जमाल ने ठीक ही कहा कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि जब तक सारे दिल मिलकर एक रास्ता न बन जाएं, दिल्ली तो नजदीक आती ही नहीं। मगर यहां तो ये हाल है कि खुद मेरे ही सीने में जितने दिल धड़क रहे हैं, अलग अलग धड़कने हैं। मिर्जा फखरू का दिल कहीं और मिर्जा अबू बकर का दिल कहीं और। मिर्जा मुगल अपनी धुन में हैं और मलिका आलिया जीनत महल अपनी ही धुन में। दिलों की इस खींचातानी ने जिल्ले सुभानी को तन्हा और मुझे खोखला कर दिया है। हम हार के महबूब अली खान। अरे बिटिया साहब, हारे आपके दुश्मन। हारने में अब रही क्या गया है? लाट साहब ने फखरू को वली अहद बना ही दिया। वली अहदी और आलम पनाही में बहुत फर्क है बिटिया साहब। जिले सुबहानी के सेहतियाबी ने मिर्जा फखरू के पास आते हुए दिल्ली को ढकेल के दूर कर दिया। क्या मतलब? जिले सुबहानी की सेहतियाबी का जश्न मनाइए और उसमें वली अहद को भी बुलाइए। हकीम इमामुद्दीन अभी यहीं मौजूद है। उज्र मेरे कत्ल करने में वो फरमाएंगे क्या? साहिब आलम को जिले सुबहानी की सेहत मुबारक हो। लेकिन अब हमें यह बात पसंद नहीं कि तुम एक दरबारी रक्कासा की तरह सबके सामने नाचो। मुगल शहजादों को इस किस्म की बातें कहने का शौक क्यों है साहिब आलम? कनीज तो सिर्फ एक कनीज है, और जब तक साहिब आलम जिले सुबहानी नहीं बन जाते, कनीज ही रहेगी और उसे मलका आलिया के इशारों पर नाचना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था मेरे नाचने गाने के दिन खत्म हुए, मगर जिले सुबहानी का तो जश्न सेहत हो रहा है। ये हकीम इमामुद्दीन भी कमाल के आदमी निकले। दवा ज़ूद असर है ना? ये भी कोई पूछने की बात है बिटिया साहब? महबूब बुआ, कनीज माफी चाहती है। इन दवाओं का ज़ूद असर होना अच्छी बात नहीं है बिटिया साहब। ऐसी दवाओं को तो धीरे धीरे काम करना चाहिए। पर कहीं इंतजार करते करते हमारा ही काम तमाम ना हो जाए। अरे अल्लाह न करे बिटिया साहब, काम तमाम हो आपके दुश्मनों का और उनके होतों सूतों का। इस झगड़े ने कोई धूप में थोड़े ही बाल सफेद किए हैं, कितनों को कब्र में सुला चुका है। तुम बकती बहुत हो। ए होशों में रहो इमामुद्दीन,
वो दिन भूल गए जब मेरे चारों तरफ चील की तरह मंडलाया करते थे कि कब मौका मिले और झपट लूं। ला हौल वला कुव्वत। और फिर वो फाटक हब्श खां से मिली हुई जो उठैरों की हवेली है, उसमें वो जो अहमद हुसैन रहता था, भूल गए? महबूब बुआ, तो फिर आप भी इस झगड़े से कह दीजिए कि बुआ महबूब के मुंह न लगे, दांतों के बीच जबान की तरह चुप पड़ा रहे, वरना मैं इसके सारे शजरे खोल के रख दूंगी। हाँ, खामोश महबूब बुआ। हकीम साहब, हमने बाबा को लिख दिया है कि आपने हमारे तमाम काम बखूबी कर दिए हैं। तो अब इस खादिम को रुखसत की इजाजत अता फरमाए मलका आलिया। चाहिए, लेकिन आप इस खिदमतगार पर यकीन रखें, दवा जरूर काम करेगी। ए जवानी पीटी देख नहीं चल सकती, पहाड़ जैसी टकरा गई। मेरा तो अंग अंग लरस गया कि अंधेरे में मुझे किसी ने घेर लिया। पर ये जवानी टपकाती कहाँ चली जा रही है बुआ? 1000 बार तुझसे कहा है कि बीच में नहीं टोका करते जाते हुए लोगों को। हट, जाने दे मुझे। बुआ याकूत कोई इनको कहे, कोई गुलबर्ग, टुक होठ हिला तू भी कि एक बात ठहर जाए। मैं साहिब आलम से कह दूंगी शहजादे। साहिब आलम? हटिए। तूने हमारी कई रातों की नींदें हराम की हैं परी जमाल। हम तुझसे उन रातों का हिसाब जरूर लेंगे। अब्दुल बकर! ओह, अम्मू जान, शहजादा मिर्जा मुगल। ये खंजर अपनी कमर में रखो अबू बकर। मुगल शहजादों को लौंडियों के साथ हाथापाई करना ज़ेब नहीं देता। वजह शाद फरमाया। मुगल शहजादों को तो शहर के दुकानदारों से उधार सामान लेना ज़ेब देता है। अबू बकर, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। परी जमाल, जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो जिल्ले सुबहानी का जश्न सेहत। अम्मू मोहतरम, हम वली अहद सल्तनते मुगलिया शहजादा मिर्जा फखरुद्दीन की तरफ से गम गलत करने जा रहे हैं। बेचारे बादशाह होते होते रह गए।